my channel. How are you all? So today what we're going to start? We are going to start the chapter number 4, The Little Girl. The Little Girl is a very much interesting story. ठीक है? So this story is written by Catherine Mansfield. Catherine Mansfield एक बहुत ही known author है. I should tell you, उन्होंने बहुत सारी biographies करी हैं, short stories करी हैं which will inspire you more about them. ठीक है? So if you can, please you can search them Google, उनको Google कर सकते हो आप. ठीक है? So in Little Girl, ये बहुत छोटी सी बच्ची होती है. इसमें क्या होता है basically, she used to live with her grandmother, her mother, her father. ठीक है? वो 3 लोगों के साथ, मतलब these are the 4 family members. And what happens, actually the Kezia is very much afraid of father. She don't want भी नहीं, she avoid it. उनको avoid करती थी वो अपने father किसी भी तरह. Like वो बहुत अच्छा फील करती थी जब उसके पापा ऑफिस चले जाए. But you know, every dad is not like this. ठीक है? हर एक पापा ऐसे नहीं होते हैं. All dads are Superman of the children. So yeah, this story is very much interesting. So let's get started. ठीक है? And yeah, one more thing, I'm going to provide you the story mapping of the story which is made by me. ठीक है? So the story mapping and yeah. Okay, let's get started. Starts with the Kezia the little girl. Kezia the little girl से start होती है. Kezia is a little girl. ठीक है? Kezia एक little girl थी जो अपनी mother, वो अपनी मम्मा के साथ रहती थी, अपने पापा के साथ रहती थी और अपनी ग्रैंडमदर के साथ रहती थी. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टोरी बताया that she was afraid of father. उसे अपने पापा से बहुत ज्यादा डर लगता था. And used to avoid him. She मतलब वो क्या करती थी कि वो एक तरीके से avoid करती थी अपने पापा को, वो ज्यादा ignore करती थी. She don't want to avoid, वो avoid करती थी. She used to feel relieved on seeing him to go to his office. ठीक है? So she used to feel, वो बहुत happy feel करती थी on seeing him to go to office. ठीक है? जब वो ऑफिस जाते थे तो वो बहुत अच्छा फील करती थी. Okay, so let's move ahead. So Kezia is afraid of her father. This is the second para. So Kezia considering him to be as big as a giant. ठीक है? यहाँ पे केजिया अपने डैड को किससे कंसिडर करती है? एक सुपर ह्यूमन साइज से. इससे सुपर ह्यूमन साइज से. She would often get nervous and stutter while talking to him. ठीक है? तो वो कभी कभार अपने डैड से बात करते हुए कभी कभार नर्वस हो जाती है, कभी कभी स्टटर हो जाती है जब उनसे वो बात करती है. स्टटर मीन्स stammer. So he appeared to her as harsh, rude and critical. ठीक है? तो वो केजिया की तरफ उनका व्यवहार कैसा था? उनके पापा का हार्श थे, रूड थे, क्रिटिकल थे. बट बेसिकली ऐसा कोई होते नहीं है, ऐसे डैड कोई नहीं होते. ठीक है? क्रिटिकल मीन्स डिसअप्रूविंग. वो मतलब लाइक इतना नहीं पसंद करते थे. शी लॉन्ग फॉर हिज लव एंड अफेक्शन लाइक हर नेबर मिस्टर मैकडोनल्ड्स. यहाँ पे मैकडोनल्ड्स उसके नेबर में जो एक अंकल रहते थे उनका नाम है. ठीक है? वो विश करती थी कि वो उसकी जो बगल में जो मैकडोनल्ड्स अंकल रहते थे कि उनसे कुछ उसको लव एंड अफेक्शन मिल जाए, जैसे उनके जो नेबर है मिस्टर मैकडोनल्ड्स से. So she had often seen the McDonald's playing joyously in their lawn. ठीक है? तो उसने काफी बार मैकडोनल्ड्स अंकल को joyously मतलब खुशी खेलते हुए देखा है लॉन में. She wondered he might be a different sort of father. ठीक है? Sort of father. ठीक है? She wondered कि वो सोचती थी कि शायद उसके पापा भी ऐसे होते. ठीक है? So let's move ahead. Kezia's parents are indifferent towards her. ठीक है? So Kezia की parents इसकी तरफ indifferent है. How? Let's see. Her grandmother, ठीक है? Her grandmother wanted to understand her parents better. ठीक है? So जो grandmother थी वो चाहती थी कि केजिया जो है अपने पेरेंट्स को थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझे. ठीक है? And would ask her to go to drawing room to chat with them. ठीक है? तो grandmother ने एक दिन उससे कहा कि वो चाहती थी कि जो केजिया है उसके अपने पेरेंट्स से थोड़ी अच्छी ट्यूनिंग बने, बिकॉज वो अपने पापा से ज्यादा बात नहीं करती थी. So I would ask her to go to the drawing room. तो उसकी grandmother ने उससे कहा कि तुम जाओ drawing room में जाओ and just chat with your parents and just see. Then but she found them indifferent towards her. जैसे ही वो नीचे गई तो उसने अपने पेरेंट्स को अपने प्रति थोड़ा indifferent पाया. Like वो थोड़े different like जैसे पेरेंट्स होते हैं आओ, they were not like that. So her father was always found stretched out on the sofa with his handkerchief on his face, his feet on the best cushions, sleeping.
ठीक है। सो उसके जो फादर थे वो हमेशा स्ट्रेस्ड होते थे, एकदम सोफे पे एकदम आराम से हैंडकरचीफ अपने चेहरे पे होता था उनके। His feet was on the best cushion sleeping, ठीक है। उनके feet जो होती थी cushions पे होती थी like this, ठीक है। उनका जो चेहरे पे जो cushion ऐसे पड़ा रहता था, like wait मैं आपको दिखाती हूँ। उनके चेहरे पे ऐसे cushion पड़ा रहता था like this, ठीक है। और वो just bed के beside में ही था वो, no, सोफे के beside में था, ठीक है। So Kezia makes a mistake, ठीक है। So when Kezia makes a mistake, this para is a lot interesting. I am telling you, मैंने इसको personally पढ़ा था and I love it. So आपको भी पढ़ने में मजा आएगा. Once her grandmother suggested that she made a gift for her father birthday, ठीक है। उसके Kezia के जो पापा थे उनका बर्थडे पास आ रहा था, तो उसकी ग्रैंडमदर ने उसको सजेस्ट किया कि आई थिंक तुम्हें अपने पापा के लिए कोई बर्थडे गिफ्ट बनाना चाहिए, ठीक है। सो दे डिसाइडेड, दोनों ने, ग्रैंडमदर, दे रिफर्स टू द ग्रैंडमदर एंड Kezia, they decided that Kezia would make a pin cushion for him, ठीक है। सो दोनों ने, उसकी दादी ने भी और Kezia ने, दोनों ने डिसाइड किया that they would make a pin cushion for him, ठीक है। उनके लिए एक पिन cushion बनाएंगे। She somehow stitched the 3 sides of the cushion, ठीक है। उसने किसी भी तरह cushion की 3 sides को stitch किया, ठीक है। Stitch means उसने सिला, but she wasn't sure what to fill it with, ठीक है। पर वो बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि उसके अंदर क्या भरना चाहिए, ठीक है। सो शी वेंट इनटू मदर्स बेडरूम, वो अपनी मम्मा के बेडरूम में गई, एंड टू लुक फॉर सम स्क्रैप्स, ठीक है। वो स्क्रैप्स ढूंढने गई थी। देन उसने क्या देखा कि शी फाउंड मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर ऑन द बेड टेबल, ठीक है। उसने काफी शीट्स देखी बेड टेबल पे। शी गैदर्ड देम, ठीक है। उसने उनको इकट्ठा करा, गैदर्ड देम मींस इकट्ठा करा। tore them into tiny pieces and stuffed them in the case, ठीक है। उनको tore मतलब फाड़ दिया किसी भी तरह, एंड उनको tiny pieces में stuffed them, उसको फिर केस में stuff कर दिया। Little did she know that it was her father's great speech for the port authority. Actually, जहाँ पे उनके फादर काम करते थे, उनकी जो अथॉरिटी थी, उन्होंने एक पेपर तैयार करा हुआ था उसके फादर ने, ग्रेट स्पीच, अपनी जो स्पीच देने के लिए। बट लिटिल डिड शी नो दैट उसके फादर की उसने ग्रेट स्पीच फाड़ दी। इट्स ओके। पिन क्वेश्चन जो था वो नीडल होल्डर होता है, ठीक है। पिन क्वेश्चन एक नीडल होल्डर, स्क्रैप्स मींस पीसेस, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। Kezia gets punished, ठीक है। इतना काम करने के बाद भाई अब किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, उसके डैड, it was normal, ठीक है। Then he saw that कि the Kezia has tore my, जो उन्होंने स्पीच तैयार करी थी उन्होंने फाड़ के रख दी थी Kezia ने, ठीक है। So though she accepted her mistake, उस छोटी सी बच्ची ने अपनी मिस्टेक भी एक्सेप्ट करी थी, that yes daddy that I have tore that, and try to explain the reason behind it. उसने अपना रीजन भी बताना चाहा कि क्यों मैंने ये आपका जो पेपर है ये फाड़ा डैडी। देन बट उसके जो फादर थे वो इतने एंग्री थे कि वो सुन भी नहीं रहे थे। her father was too angry to listen to her, ठीक है। वो सुन भी नहीं रहे थे कि इतने एंग्री थे वो, because then she was punished for that, उसको punishment मिली इसके लिए। this incident further estranged Kezia from her father, ठीक है। इस इंसिडेंट ने Kezia को अपने पापा से और दूर कर दिया। estranged means unfriendly, dads तो होते ही हमारे फ्रेंड है ना। This incident further estranged, ठीक है। इस इंसिडेंट ने बेसिकली Kezia को अपने पापा से अनफ्रेंड कर दिया थोड़ा सा। So Kezia was crying a lot. So Kezia is a nightmare. Nightmaring means डरावना सपना, ठीक है। So once her mother fell ill, ठीक है। उसकी जो मम्मा थी वो गलती से नहीं, once her mother fell ill, उनकी जो मम्मा थी वो बीमार पड़ गई थी and was hospitalized की गई थी। She was left alone at home, ठीक है। वो Kezia फिर अकेली थी घर में। Then she was thinking अब मैं क्या करूँ, ठीक है। Under the care of the cook, ठीक है। She was left alone at home under the care of the cook, ठीक है। वो घर पे अकेली थी, सिर्फ कुक उनकी केयर कर रहे थे। At night, ठीक है, रात में she had a nightmare, उनको रात को डरावना सपना आता है। And she woke up screaming, ठीक है। वो उठ जाती है, रोने लगती है। रोने लगती है। ओ ये क्या हो गया, उसको सपना आ जाता है ना बहुत डरावना सा। She has a nightmare about that. So let's move ahead. Kezia changed opinion about father, ठीक है। इस पैराग्राफ में Kezia ने अपने फादर के प्रति ओपिनियन चेंज कर लिया।
है ना। Besides इसके अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं, so no father, कोई ऐसा फादर नहीं होता कि हमेशा हार्श रूल रहे। Every father is very good. She found her father standing by her bedside. ठीक है, so उसने अपने फादर को देखा कि वो उसके बेड के बगल में खड़े हैं। He picked her up. ठीक है, उसके पापा ने उसे उठाया and took her to her room. ठीक है, तो उसे अपने साथ अपने रूम ले गए। He tucked her up in his bed and soon fell asleep. ठीक है, तो उन्होंने केजिया को अपने उसमें रखा एंड देन वो दोनों सो गए लाइक दिस। ठीक है, ये केजिया के डैड है एंड दिस इज केजिया। दे बोथ आर स्लीपिंग, दोनों सो गए। केजिया फेल्ट सिक्योर लाइंग नियर हर। ठीक है, केजिया को बिल्कुल सिक्योर लगा कि यस वो बहुत ही अच्छे से सो गई, बिकॉज नाउ शी वाज कि उसे अब लग गया था, नहीं, दैट शी रियलाइज दैट, ठीक है, उसे अब समझ आ चुका था दैट हर फादर वाज नॉट अ बिग एज अ जायंट। ठीक है, वो इस जायंट की तरह नहीं थे। She felt the beating of her father's loving and large heart. ठीक है, so फिर उसे felt हुआ that भी उसके पापा का मारना was of love. ठीक है, वो love था, उनका बड़ा दिल था। Finally she realized that her father was also very loving. With जैसे मैकडॉनल्ड्स वाले अंकल थे ना, उनकी तरह उसकी डैड भी बहुत ज्यादा loving थे, caring थे। ठीक है, so thank you so much for watching my video. Oh yeah, then I want to just आपको मैं अभी आपको story mapping दिखाऊंगी, SM, ठीक है, story mapping. So let's see. So this is story mapping of the chapter The Little Girl. ठीक है, so the story mapping में characters are Kezia, her father, her mother, her grandmother and Mr. McDonald's. ठीक है, The Little Girl के author हैं The Little Girl के ऑथर है कैथरीन मैन्सफील्ड। ठीक है, सो इसके ऑथर कैथरीन मैन्सफील्ड है। थीम इज रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। इसका थीम ही यही है कि अब बच्चों का और पेरेंट्स में बिटवीन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, थीम्स ऑफ फियर कंट्रोल। ठीक है, ये एक और थीम है, थीम फियर का, कंट्रोल का, एक्सेप्टेंस का, कंपैशन का एंड चेंज का। ठीक है, the setting of the story is little Kezia's house where she lived with her parents and grandmother. ठीक है, the story was very cute and very beautiful and this refers to all your dad. ठीक है, आपके डैड को ये स्टोरी रेफर करती है। ठीक है, little Kezia's house where she lived with her parents and grandmother. ठीक है, so setting ये है। And thank you so much for watching my video. Please, if you like this video, just go and press the bell button. If you like my video, like it, share it and comment down if you want another thing. Beginning of the story is Kezia was scared of her father and kept a distance from him. ठीक है, तो beginning कुछ ऐसे हुई थी हमारी स्टोरी की, जो केजिया है वो अपने पापा से बहुत डरती थी and she kept a distance from him. वो अपने डैड से थोड़ा डिस्टेंस रख के हमेशा चलती थी। She considered him to as big as a giant. ठीक है, तो वो उनको कंसिडर करती थी बहुत बड़े ह्यूमन साइज के। ठीक है, तो वो ऐसा कंसिडर करती थी बिकॉज शी डोंट लाइक हर फादर बिकॉज ऑफ हिज एंगर। ठीक है, उनके एंगर की वजह से। She longed for his love and affection. She wanted a loving father like her neighbor McDonald. Mr. McDonald जैसे लॉन में अपने चिल्ड्रन के साथ खेलते थे, वैसे ही वो चाहती थी कि she want a father like him. Middle of the story, what happened? Kezia by mistake filled a pin cushion with her father important papers. ठीक है, तो फादर के important papers से गलती से केजिया ने उसका पिन कुशन बनाना चाहा, but that was not the girl's intention. ठीक है, गर्ल का इंटेंशन ये नहीं था, but by mistake. ठीक है, father was too angry to listen and punished her. ठीक है, उन्होंने ये सुना कि उसने मेरी बहुत important speech फाड़ दी, तो उन्होंने उसको पनिश किया। फादर बहुत एंग्री हो गए ना। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो वंस केजिया woke up in the middle of the night. ठीक है, उस केजिया के बीच रात में नाइटमेयर आ गया था, बहुत ही हॉरिबल नाइटमेयर था, डरावना नाइटमेयर। शी फाउंड हर फादर बिसाइड द बेड कंफर्टिंग हर। ठीक है, सो उसने अपने पापा को जस्ट अपने बगल में पहा, अपने बेड के बिल्कुल बेड साइड। ठीक है, सो उसको कंफर्ट दे रहे थे, जैसे it have करते हैं parents if you just scream like. ठीक है, so she could feel the fatherly love. ठीक है, तो वो अपने फादर का लव फील कर सकती थी। she understood that the love and care in his own way. so वो समझ चुकी थी कि फादर जो है प्यार भी करते हैं और गुस्सा भी करते हैं, so both are the same
उनका सेम एक रूट होता है. Please like my video if you like it, share it and comment down if you want something like this only. ठीक है? And please subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.